A second level of the prophetic is the gift of prophecy that is recorded in 1 Corinthians chapter 12. और दूसरा जो स्तर के जो भविष्यद्वक्ता हैं वो पहले कुरिन्थियों 12 में लिखे हुए भविष्यवाणी का वरदान पाए हुए लोग। That gift of prophecy is one of the 9 gifts of the Holy Spirit. और ये भविष्यवाणी का वरदान पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक है। Then there is another gift called the spirit of prophecy. और उसके बाद में भविष्यवाणी का वरदान है। What is the spirit of prophecy? Spirit of prophecy. आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा है, वो क्या है? A prophet carries an anointing on him. एक भविष्यद्वक्ता अपने साथ एक अभिषेक लेकर चलता है। Many times I've seen when prophets walk into a place, after some time, even after the prophet is gone, the church is still prophesying because God takes the spirit of that anointing and puts it upon the leaders of the people over there. और कई बार मैंने देखा किसी जगह पर जब भविष्यद्वक्ता आकर कुछ समय वहां बिताकर वापस चला जाता है तो भी वहां के लोग भविष्यवाणी करना जारी रखते हैं। क्यों? जिस आत्मा को वो लेकर आया था उसी आत्मा का अभिषेक परमेश्वर लोगों को देता है। Have you seen that? After a prophet comes, he's prophesied, he's gone. Suddenly others are in the church are just prophesying because there is a rubbing off of the anointing. और आपने भी ये देखा होगा जब वो आकर चला जाता है तो कलीसिया में वही भविष्यद्वक्ता ध्वनि का माहौल बना रहता है। The Lord took a spirit from Moses and put it upon the leaders and they all started prophesying. परमेश्वर ने जैसे मूसा की आत्मा में से लिया और वहां के प्राचीनों में पुर्नियों में डाल दिया और सबने नबूवत करना शुरू किया। That is the spirit of the prophetic. ये है भविष्यवाणी का आत्मा। The fourth level of prophetic is called the office of the prophet. और चौथा है भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता का कार्यालय। What is that? That is one. That's not a gift of the Holy Spirit. That is one of the governmental gifts of Jesus in the fivefold ministry. It's the office of the prophet. और ये भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा दिए गए 5 स्तरीय कार्यालयों में से किए जाने वाले कार्यों में से पद आधारित कार्य है भविष्यद्वक्ता का। From the gift of the Holy Spirit you can prophesy, but the office of a prophet is a governmental gift to establish the church along with the apostles. और यहाँ पर जब भविष्यवाणी का वरदान मिलता है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको वो कार्यालय मिला है तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि प्रेरितों के साथ कलीसिया को भी भविष्यद्वक्ता के उस स्थान तक पहुंचाएं। How many understand what I'm saying? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी So बात? Jesus the great prophet. यीशु मसीह जो बड़ा भविष्यद्वक्ता है। The gift of prophecy according to 1 Corinthians 12. और दूसरा भविष्यवाणी का वरदान कुरिन्थियों के आधार The पर। spirit of prophecy when God takes the spirit from a prophet and puts it upon the people. और तीसरा है भविष्यवाणी का आत्मा, वहां पे परमेश्वर आत्मा को लेता है, लोगों पे डालता है, वो भविष्यवाणी करते हैं For a season. और कुछ समय के लिए वो होता है। The fourth one is the office of a prophet. और चौथा है भविष्यद्वक्ता का कार्यालय या पद। That is one of the fivefold ministry. और वो है 5 चरणीय सेवकाइयों में एक। What is the job of that prophet? उस भविष्यद्वक्ता का कार्य क्या है? According to Ephesians chapter 4 verse 11-12, it is to equip the saints for works of ministry. इफिसियों 4:11 और 12 के आधार पर सेवकाई के काम के लिए संतों को सिद्ध करने। So the New Testament prophets have 7 major responsibilities. तो नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं की 7 मुख्य जिम्मेदारियां हैं। Write it down quickly so that you can remember it even as you go back. First and main job of a prophet is to equip the saints through works of ministry. और पहला और मुख्य काम सेवकाई के कार्य के लिए संतों को तैयार करना। What is the main job of a prophet? New Testament prophet? भविष्यद्वक्ता का मुख्य काम क्या है नए नियम वाले? हाँ, भासवानों के साथ खड़े होके saints को equip करना, प्रेरित के साथ खड़े होके saints को equip करना. The job of a prophet is to equip the saints. Number 1. संतों को निपुण करना, तैयार करना। Which means they must be able to preach and teach. उसका मतलब उनको भी प्रचार करना और प्रशिक्षण देना आना चाहिए। Not only to prophesy. केवल भविष्यवाणी करना ही नहीं। The second job of a prophet दूसरा कार्य क्या है उनका? is to stand in the gap and intercede on behalf of man to God. और लोगों के लिए परमेश्वर के सामने बिचवाई में खड़े रहना। Represent man to God and represent God to man. परमेश्वर के सामने मनुष्य का, मनुष्य के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधि बनना। To tell God, Lord, be patient. Your people are rising up. And to tell the people, get ready. Jesus is coming soon. और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अभी आप धीरज रहें, लोग उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और लोगों को कहना तैयार हो जाओ, वो आ रहा। Hallelujah. Hallelujah. The second job of a prophetic office is to stand in the gap. तो मतलब बिचवाई में खड़ा होना भविष्यद्वक्ता का दूसरा कार्य है। The third burden of a prophet is to strengthen a weak church. भविष्यद्वक्ता का तीसरा कार्य है एक कमजोर कलीसिया को मजबूत बनाना। When a prophet comes in, a weak church, he will come and challenge the church. Come on, God can use you. जब एक कमजोर कलीसिया में भविष्यद्वक्ता आता है
है वो आकर चुनौती देता है, आपका भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। When there is sin in the church, a prophet comes and calls out that sin. और जब एक पाप कलीसिया में होता है तो ये भविष्यद्वक्ता आकर उस पाप को उजागर करता है। This is why pastors and prophets don't get along. इसीलिए पासवान और भविष्यद्वक्ताओं की आपस में नहीं बनती। You know, prophet will come and he will lift the carpet. ये क्या है गंदगी इसके नीचे? भविष्यद्वक्ता आके पता क्या करता है, कालीन उठाकर नीचे की गंदगी दिखाता है, ये क्या है? Pastor will say, तुम्हें किसने बुलाया? And he puts the carpet back. और पासवान बोलता है कि तुझे किसने बोल दिया, वापस कालीन बिछा देता है। Around the world, prophets and pastors have had trouble because their grace is different, their enablement is different. संसार भर में पादरी और भविष्यद्वक्ताओं में ये दिक्कत बनी रही है, पता है क्यों? उनका अनुग्रह है, उनका मजबूतीकरण अलग-अलग है। भविष्यवक्ता बोलेगा सब ठीक नहीं है, भविष्यद्वक्ता कहेगा कि सब सही नहीं है, पासवान बोलेगा सब ठीक हो जाएगा। पासवान बोलेगा सब सही हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because their heart is different. क्योंकि उनका दिल अलग है। But let a prophet come and challenge the church to rise up. और लेकिन एक जो भविष्यद्वक्ता वो आकर कलीसिया को चुनौती देते हैं और उन्हें खड़ा तैयार It is the करते हैं। job of a prophet to prepare the church if the church is weak, challenge on sin, and to encourage a sleeping church and to challenge a sinning church. यदि कलीसिया कमजोर पड़ी है, सोई पड़ी है, पाप आया पड़ा है, ये भविष्यद्वक्ता का काम है। वो आता है, उन्हें जगाता है, तैयार करता है। Fourth responsibility of the office of a prophet, भविष्यद्वक्ता के कार्यालय की चौथी जिम्मेदारी, along with the apostles, to stand up and raise up people in the fivefold ministry. प्रेरितों के साथ मिलकर पांच चरणीय सेवकाई के लिए लोगों को खड़ा करता है। Many times the apostle, you know the difference between apostles and prophets? प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं में अंतर क्या है? This is powerful. ये शक्तिशाली है, सुनिए। Many prophets, they know where to go. कई भविष्यद्वक्ताओं को पता है कि वो कहां जा रहे हैं, But the apostles know how to get there. लेकिन प्रेरित ही जानते हैं कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। Prophets see things in the spirit. भविष्यद्वक्ता आत्मा में वो सब देखते हैं। बेदारी आने वाला है. बेदारी आ रही है, Revival is coming. बेदारी आ रही है, Revival is coming. बेदारी आ रही है, वो कह के निकल जाएगा. चला जाएगा कहकर। अभी प्रेरित बैठ के सोचना पड़ेगा ये बेदारी कैसे हम लेके आएगा. You know that's the job. But the apostle knows how to do it. प्रेरित को ही पता रहता है कि उसको कैसे किया जाए। मम्मी बोलेगा बच्चों को सिखाना है, बच्चों को सिखाना है. पापा सोचना पड़ता है कौन सी स्कूल भेजना है, पैसा कहाँ से लेके आएगा, कौन सा किस बस में चढ़ा के वहां छोड़ देगा. The prophet knows what is going to happen. The apostle knows how to make it happen. भविष्यद्वक्ता जानता है कि क्या होने जा रहा है और प्रेरित ही जानता है कि वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। So the fourth call of an apostle is to stand with of the prophet is to stand with the apostles and release people into their और gifting. भविष्यद्वक्ताओं का चौथा काम है प्रेरितों के साथ खड़े होकर पांच प्रकार की सेवकाइयों के लिए लोगों को तैयार करें। Fifth grace of a prophet भविष्यद्वक्ता का पांचवा कार्य is to establish the foundational doctrines of the church along with the apostles. प्रेरितों के साथ कलीसिया के आधारभूत सिद्धांतों को मजबूत बनाना। I love apostolic prophetic combinations. मुझे ये प्रेरिताई और भविष्यवाणी का मिश्रण पसंद है। I have worked in apostolic prophetic teams. मैंने भी ऐसे दल में काम किया है जहां पे प्रेरित और भविष्यद्वक्ता मिले रहते हैं। Very different people. अलग अलग प्रकार के लोग हैं ये, You cannot see eye to eye. कभी भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। I have seen many times in ministry, मैंने सेवकाई में कई बार देखा है revivalists like to stand together. और बिदारी लाने वाले एक साथ खड़ा रहना पसंद करेंगे। Because जितने लोग हैं सब लोग बेदारी 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 बोल रहे हैं. सब लोग एक साथ बेदारी ही बोल रहे हैं, The burden is revival. बोझ है उनका बेदारी। But if a pastor comes among them, लेकिन उनके बीच में जब एक पास्टर आ जाता है, उसको ट्रेनिंग करना है, लोगों को डिसाइपलशिप करना है, जब सुनेगा तब बोलेगा अरे ये बेदारी के बीच में आग के बीच में पानी डाल रही है लोग. We need to reach the lost. So people don't get along. तो वहां पर लोग उनके साथ में पास्टर के साथ में जमते नहीं है। But the apostle, लेकिन प्रेरित है, he knows how to listen to the prophet. वो भविष्यद्वक्ताओं को भी सुनना उसे आता है He knows how to put the teachers in place. और शिक्षकों को उनके स्थान पर रखना उसे आता है, He knows how to put the pastors in place. पासवानों को उनकी जगह पर रखना उसे आता है। What does the prophet do? भविष्यद्वक्ता क्या करता है? Stand with the apostle to establish doctrine. प्रेरित के साथ खड़े होकर इन सिद्धांतों को, पदों को स्थापित करता है, स्थिरता देता है। Hallelujah. हालेलुया। Sixth job of the prophet. भविष्यद्वक्ता का छठवां काम, Sixth job of a prophet. छठवीं जिम्मेदारी क्या है भविष्यद्वक्ता की? The sixth job of a prophet छठवीं जिम्मेदारी उसकी is to
prepare the church, and very, very important job, prepare the church for the second coming of Jesus. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलीसिया को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना। The prophets of the Old Testament prepared the church for the first coming of Jesus. पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु के प्रथम आगमन के लिए लोगों को तैयार The किया। prophets of the the New Testament church have to prepare the church for the second coming और of नए Jesus. नियम के भविष्यद्वक्ताओं की जिम्मेदारी है कि उसके दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार, कलीसिया को तैयार करें। And then seventh job of a prophet, और भविष्यद्वक्ता का सातवां काम, very easy, prophesy. बहुत ही आसान काम है, भविष्यवाणी करना। Bhavshyadani karna. That's one of the 7 jobs of a prophet. ये 7 में से एक उसकी जिम्मेदारी है। How many understood what I'm talking about? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? How many understood there's a difference between the gift of prophecy and the office of a prophet? कितने लोगों को पता चल गया कि भविष्यवाणी का वरदान अलग है, भविष्यद्वक्ता का कार्यालय अलग है। And you must understand there is a difference between Old Testament prophet and New Testament prophet. और ये भी पहचानना जरूरी है कि पुराने और नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं में भी फर्क है, अंतर है। In the Old Testament, the Spirit of God fell on people, and after the anointing, it lifted off. और प्रेरितों के पुराने नियम के अंदर जब भी वो काम होता था, आत्मा उतरता था, उसके बाद में आत्मा चला जाता But था। in the New Testament, the job of a prophet is to teach and train people in the kingdom. लेकिन नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं का काम है कि राज्य के लोगों को प्रशिक्षित करें, सिखाएं। Old Testament prophet were leaders of the old covenant. पुराने नियम के जो लोग थे वो पुरानी वाचा के अगुवे थे, The New Testament prophets are leaders of the new covenant. लेकिन नए नियम के अंदर ये लोग नई वाचा के अगुवे हैं। The Old Testament prophets, God chose a prophet and sent them to give guidance to his people. पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को चुनता था कि जाकर लोगों को अगुवाई दे, Because they didn't have the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। New Testament people have the Holy Spirit. The Bible says, test every prophecy, hold on to that which is good, and you might hold on to that. लेकिन नए नियम में सबके पास में पवित्र आत्मा है, इसलिए बाइबल कहती है कि सारी पवित्रवाणियों को परखो और जो भी उसमें से सही हैं, उत्तम हैं, उनको पकड़ लो। Old Testament prophets, their main job was to prepare the Jewish kingdom of Israel for the first coming of Jesus. और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं का काम यीशु के प्रथम आगमन के लिए यहूदियों को तैयार करना But था। the New Testament prophet, their job is to prepare the church for the second coming of Jesus. लेकिन नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं का काम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करना। Now listen to this. Old Testament prophets directly answerable to God. सुनिएगा, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता सीधे जवाब दे थे परमेश्वर के। New Testament prophets have to submit to the apostolic authority. लेकिन नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं को प्रेरितीय अभिषेक के अधीन रहना है। Many of us are still operating in an Old Testament anointing. We don't like to submit. आज भी हम कई लोग पुराने नियम के भविष्यवाणी के वरदान में काम कर रहे हैं, किसी के अधीन होना हमें पसंद नहीं है। In the Old Testament, we see that it was very different than the New Testament. पुराने नियम में जो नए नियम में आज हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग था। They learned to work under apostolic authority in the New Testament. नए नियम के अंदर वे प्रेरितों के अभिषेक के तले अधीन रहकर काम करना सीख रहे थे।